A very pleasant morning to all the dear students of class 9. This is your Purnima ma'am, and we were doing the factor theorem in the previous video, and I had told you that today we will be discussing the factorization of polynomials, okay, and specifically we will focus on the quadratic and cubic polynomial for the factorization. So today we will learn the factorization of polynomial by two methods. The first one will be splitting the middle term, okay, splitting method, or you can say splitting the middle term, and the second one is using factor theorem. So basically in the factor theorem we have learned that in case of a polynomial px for a real number a, ठीक है ना, we have a polynomial px और एक real number a है, then pa is x minus a is a factor of px if pa is equals to 0. Okay, and pa is basically by the remainder theorem we have got that pa is the remainder, है ना. So रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फैक्टर थ्योरम, तो आपका फैक्टर जो है वो x माइनस ए जो आपका डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो आपका फैक्टर हो जाता है. सो मीन्स x माइनस ए इज अ फैक्टर इफ pa is equals to 0. So this will be the basically our focus, है ना. हम क्या करेंगे जब हमें एक पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करना है तो बेसिकली हम वो a फाइंड करना चाहते हैं जिसके लिए आपका pa is equals to 0 हो जाए. समझ रहे हैं आप. जब हमें किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड करना है, मीन्स पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो हम वो रियल नंबर a ढूंढना चाहते हैं जिसके लिए आपका pa इज इक्वल्स टू 0 हो जाए. क्योंकि जब हमें वो रियल नंबर a मिल जाएगा जिसके लिए pa इक्वल्स टू 0 हो रहा है, देन वी विल से दैट x माइनस a इज अ फैक्टर. ठीक है, px पॉलिनोमियल है, देन वी विल से दैट x माइनस a इज अ फैक्टर. सो दिस इज द बेसिक थिंग behind the factorization and using the factor theorem. So now moving further, I will be taking an example and we will solve that polynomial. We will factorize that polynomial by splitting method and then by using the factor theorem. ठीक है, दोनों तरीकों से हम same polynomial को करके देखेंगे and we will get to a result also. So before taking that example, I just want to take a small example, a simple example of splitting the middle term. ठीक है, it means आपने ये पहले भी किया हुआ है for quadratic polynomial. You have done this before also. For quadratic polynomial, you have known to how to split the middle term and find the factor of a quadratic polynomial. ठीक है, quadratic polynomial means a polynomial of degree 2. So therefore अगर हम splitting the method की middle term की बात करें, splitting the middle term से factorization करना basically होता क्या है, अगर मैं उसकी बात करूँ in simple words, बहुत ही simply समझाऊंगी. So before moving to the main example, I am going to take a simple example ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ओके, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हम उसका मिडल टर्म स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, वी विल सी दैट. तो जो ये आपकी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. ओके, सो then we will do more examples of this type, or I think in the previous classes you have known this factorization, but gradually when we will do examples you will get to know more clearly. So now 6, यहाँ पर आपको 6 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जो ऐड करने पर 5 दे. मीन्स 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ इन द फॉर्म ऑफ a इंटू बी, देन सच दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5. ऐसा होना चाहिए. मतलब बेसिकली अगर 6 के मैं फैक्टर देखूंगी तो क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड बस यही होंगे 6 के फैक्टर्स. ओके, तो यहाँ पर तो मुझे 5 नहीं मिलता दोनों फैक्टर को ऐड करने पर, लेकिन यहाँ पर दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पर ये मिडल टर्म मिलनी चाहिए. द फोकस इज दिस. ओके, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, सो इट मीन्स 2 प्लस 3 आपका 5 भी होगा. ओके, देन यू विल स्प्लिट दिस मिडल टर्म एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6. ठीक है, सो यू विल गेट वॉट, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेंगे आप और ये क्या होगा, x प्लस 2 बचेगा इन दोनों टर्म में से. उसके बाद प्लस 3 कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, यू विल गेट x प्लस 2. आपने यहाँ से 3 इसलिए कॉमन लिया, व्हाट यू विल सी दैट आपको ये x प्लस 2 एंड x प्लस 2 यहाँ पर दोबारा से एक सेम नंबर्स सेम टर्म्स आनी चाहिए बेसिकली.
ओके, सेम टर्म्स सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए ताकि आप एक बार और कॉमन ले सकें एंड यू विल गेट। अब यहाँ से फ्रॉम दिस, इसमें से और इसमें से आप कॉमन लेंगे। सो क्या कॉमन आ रहा है आपका? इट इज़ योर x+2 कॉमन आ जाएगा, और x+2 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा है? x, और यहाँ से क्या बचा है? 3। x+2 x+3 ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हो गए। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू x² + 5x + 6, ये आपके इसके फैक्टर हो गए। सो दिस इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मीन्स आपने ये जो कांस्टेंट टर्म थी 6, बेसिकली ये होता ये है, अगर आपका ये ax² + bx + c फॉर्म का है ना पॉलिनोमियल, तो आपको a × c करना होता है। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। मीन्स a × c इज इक्वल्स टू 6 है ना, तो आपको ए सी के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने होते हैं जिनको ऐड कर कर मिडल टर्म आए। ठीक है, ए सी जो कुछ भी होगा ना, यहाँ पर 6 आ रहा है क्योंकि ये 6 × 1 हुआ है। अगर यहाँ 2x² होता ना तो ये 6 × 2 होता है ए सी। फिर हम 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढते जिनको प्लस करके 5 आता है। ठीक है, समझे आप ये? तो इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन होती है और उसके ऐसे फैक्टर ढूंढने होते हैं जिनको प्लस करके मिडल टर्म मिलेगी। सो दिस इज बेसिकली द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। नाउ कमिंग टू द मेन एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, you will get the things more clearer. Okay, so this is the example that we are going to discuss. Factorize 6x² + 17x + 5, first by splitting middle term and the second is by factor theorem. So what you will do, सबसे पहले देखते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म का। ठीक है, सो फर्स्ट वे आपका क्या होगा? we will find नंबर्स p एंड q, a b भी ले सकते हैं, p q कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वी विल फाइंड नंबर्स p एंड q सच दैट, मुझे कैसे चाहिए ना वो नंबर, कंडीशन क्या है देखो, सच दैट p q इज इक्वल्स टू 6 × 5 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी मैंने आपको इसका थोड़ा सा हिंट दिया, तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दी, 6 × 5 = 30 हो गया। तो 30 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए सच दैट, मतलब p और q ऐसे हों, pq इज इक्वल्स टू 30 हो गया। p एंड q के साथ ये कंडीशन है, 30 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने पर ये मिडल टर्म आए। ठीक है, मिडल टर्म मीन्स 17 आए। तो वी विल फाइंड नंबर्स p एंड q सच दैट pq इज इक्वल्स टू 30 एंड pq इज इक्वल्स टू 30 एंड p + q इज इक्वल्स टू 17। ठीक है ना, मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए, तभी मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर पाऊंगी और मैं फैक्टर्स निकाल पाऊंगी। तो p + q इज इक्वल्स टू 17 ऐड कर मिडल टर्म आनी चाहिए। सो 30 के फैक्टर्स देखो, 30 के पॉसिबल फैक्टर्स करना यहाँ पर पहले देखना, हमें पॉसिबिलिटीज़ ही पड़ेंगी। ठीक है, डायरेक्ट भी मिल सकते हैं व्हेन वी विल गेट हैबिचुअल, बट पहले पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। तो 30 के फैक्टर्स 1 × 30 ऐसा होगा। ठीक है, 2 15 = 30 होता है। ओके, 6 5 = 30 होता है। ठीक है, क्योंकि 2 फैक्टर्स का हमें एडिशन चाहिए ना, तो हम 2 की मल्टीप्लिकेशन में इसलिए देख रहे हैं। तो इतना हुआ। ठीक है, नाउ सीइंग दिस व्हाट वी विल गेट, 1 + 30, मतलब अगर p को मैं ये लूँ 1 लूँ और q को 30 लूँ, तो p + q इज इक्वल्स टू 30 तो नहीं होने वाला, सॉरी 17 नहीं होने वाला। यहाँ पर 6 + 5 11 होगा, ये भी नहीं हमारा पर्पस सक्सेसफुल करेगा। 2 × 15। ठीक है, p को अगर मैं 2 लूँ और q को अगर मैं 15 लूँ, तो p + q इज इक्वल्स टू 17 हो रहा है। देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज दिस फैक्टर। इट मीन्स वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म in the form of these two factors. Okay, these two numbers basically. ठीक, so we will write 6x² + 17x + 5 is equals to 6x² plus, अब आप 2 पहले लिख लीजिए या 15x पहले लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 17x को बेसिकली मैंने स्प्लिट किया, 17x को स्प्लिट किया 2x + 15x, सो व्हाट यू विल गेट +5। ओके, नाउ वही कॉमन लेना। अब इन दोनों टर्म्स में से देखिए, आपके पास जितना भी कॉमन है आप सभी लेंगे। ठीक है, तो 2x विल बी कॉमन, बाहर आ जाएगा।
अब यहाँ से 2x गया है तो कितना बचेगा, 3x बच रहा है। ये आप, मुझे लगता है इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि 6x² में से 2x बाहर आया तो 3x कैसे बच रहा है। ठीक है, अगर फिर भी इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ जस्ट लेट मी नो इन द गूगल क्लासरूम इन केस ऑफ एनी डाउट। सो यहाँ से आपका 2x बाहर आ गया तो ये 3x बच रहा है, और ये आपका 2x क्योंकि पूरा बाहर चला गया है, कॉमन चला गया है, सो इट विल बी रिमेनिंग 1। ओके, नाउ प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस है सब, प्लस दो। सो 15x और 5 में से क्या कॉमन है, 5 ओनली, एंड हेयर यहाँ से मैंने 5 ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 3x, और यहाँ पर आपका 5 बाहर जा चुका तो ये 1 बचा। ठीक है, सो मेरे को ये भी साथ में ध्यान रखना होता है कि मैं इस तरीके से कॉमन आउट लूँ कि ये एक्सप्रेशन सेम आए, क्योंकि मुझे अगेन एक बार और कॉमन लेना है। सो 3x + 1 विल बी कॉमन फ्रॉम हेयर, एंड हेयर इट विल रिमेन 2x + 5। सो बेसिकली this is your answer. So you have expressed 6x² + 17x + 5 as 3x + 1, 2x + 5 by using the splitting method. And using the splitting method में करना यही था कि आपने PQ जो है = 30 and P + Q should be your middle term. The conditions I have explained you in a very better and simple way. So I hope it will be clear to you. Now splitting the method is completed. Moving to the factor theorem. कि factor theorem को मैं इसी example को by using factor theorem हम कैसे solve करेंगे. Class 9, I want to say that please watch this video completely because there is a small mistake. So I have corrected it thereafter. Just I got to know. So please watch this video completely, otherwise you will do the mistake. Okay, regret for the mistake. Thank you, class. So taking this example and using the factor theorem on this, solving by factor theorem, what you will do, you will make the coefficient of x² as 1. Okay, क्योंकि आपने factor theorem में ये जाना है that when there is a polynomial of the form x is where the coefficient of x² is 1, then if you have a and b, it means you have a and b are zeros of this polynomial. अगर a और b इस polynomial की, ठीक है, जहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, इस polynomial की a and b अगर zeros हैं, are zeros of this polynomial, तो आपने क्या देखा है that x minus a and x minus b will be the factors. ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम आपने ये देखा है. ओके, कि अगर a एंड b जीरो हो जाए इस पॉलिनोमियल की तो यू कैन डायरेक्टली से दैट x माइनस ए एंड x माइनस बी आर द फैक्टर्स. देयरफॉर आपने x² के कोफिशिएंट को 1 कर दिया है. नाउ व्हाट यू विल डू, 6x² मीन्स वी विल गेट इट एज 6x² + 17x + 5 इज इक्वल्स टू 6x माइनस ए x माइनस बी. सो वी हैव टू फाइंड आउट, बेसिकली ये इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे. हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट आर a एंड b. सो व्हाट आर a एंड b? a एंड b आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इट मीन्स इस पॉलिनोमियल में a और b पुट करने के बाद पॉलिनोमियल कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगा. सो इन दिस केस ऑल्सो व्हाट यू विल सी, इफ़ यू विल लेट px इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट px इज इक्वल्स टू x² + 17/6x upon 5/6. So in this case what do you want, so we will find a and b such that ab is equals to 5/6. ठीक है ना, हमें ए बी की ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि आपका ए बी इज इक्वल्स टू 5/6 हो जाए, ये कांस्टेंट टर्म आ जाए. तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए बी क्या होंगी, पॉसिबिलिटीज़ फॉर ए एंड बी इज इक्वल्स टू ±1/2. ठीक है, अगर मैं 5/6 चाहिए ना मुझे, 1/2 की अगर मैं 5/3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा ना, और यहाँ पर भी प्लस माइनस, बिकॉज अब अगर +1/2 इज मल्टीप्लाइड विद +5/3 आई विल गेट 5/6,
minus 1 by 2 is multiplied with minus 5 by 3, I will again get 5 by 6. So therefore this is the possibility, and the second possibilities are plus minus 1 by 3 plus minus 5 by 2. So these are the basically possibilities of A and B depending on the condition. Now अब इन possibilities को हम इस polynomial px में रख के देखेंगे, that is we will find p 1 by 2. ठीक है, तो आप p1/2 बहुत आसानी से निकाल देंगे इसमें 1/2 पुट करके, ये मुझे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. सो p1/2 यू विल गेट नॉट इक्वल्स टू 0. देन यू विल गो फॉर p माइनस 1/2. ओके, 1/2 पुट कर लिया आपने, फिर आप माइनस 1/2 पुट करके देखेंगे, यू विल गेट पॉलिनोमियल एज 0. आपको ये पॉलिनोमियल 0 मिलेगा. इट मीन्स अगर ये a है और p इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, देयरफॉर यू आर गेटिंग व्हाट, x माइनस a is a factor, है ना. it means it implies x minus half, this is a factor of px, है ना, is a factor of px. so this is x plus 1 by 2 is a factor. एक फैक्टर तो आपका ये निकल गया. नाउ क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर होंगे ना, ठीक है, बिकॉज डिग्री 2 है. नाउ अगेन यू विल ट्राई फॉर द अदर पॉसिबिलिटीज दैट आर शोन हेयर, एंड व्हाट यू विल गेट p ऑफ माइनस 5 by 2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो इट इम्प्लाइज x माइनस 5 by 2 दैट इज x प्लस 5 by 2 इज अ फैक्टर ऑफ px. ठीक है, फैक्टर ऑफ px, दोनों फैक्टर निकल गए आपके पास. तो वो x माइनस ए एंड x माइनस b जो फैक्टर्स आए, दीज आर x प्लस 1 by 2 एंड x प्लस 5 by 2. सो यू हैव रिटन दैट x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6, एंड हेयर द फैक्टर्स. ओके, सो इज इक्वल्स टू 6 x प्लस हाफ x प्लस 5 by 2. ये हो जाएगा. ठीक है, आप इसको सॉल्व जब करेंगे यू विल गेट 6, ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 1 by 2 एंड हेयर 2x प्लस 5 by 2. Class, there is a correction, make it a correction. This is x 1 minus 1 by 3. Okay, and this is again 1 minus 1 by 3, 1 by 3, and here it is your 5 by 2 is correct. Then you will have 1 by 3. This is your 3x by 3. Okay, and this is a small correction. Now you will get, ये cancel होने के बाद you will get 3x plus 1, 2x plus 5. So this is basically the फैक्टराइजेशन. आपने फैक्टर थ्योरम यूज़ किया टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, तो बेसिकली आपने यूज़ करने में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 किया पहले, क्योंकि आपको पता है कि इसके फैक्टर्स x माइनस ए एक्स माइनस बी होते हैं इफ़ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो आपको कंडीशन ऐसी ढूंढनी थी कि ए बी इज इक्वल्स टू दिस कॉन्स्टेंट टर्म दैट 5 by 6. पॉसिबिलिटीज़ देखी आपने ए बी की कि क्या हो सकती हैं, और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको ये पता चला दैट यू गॉट p at minus 1 by 3 is equals to 0 and p at minus 5 by 2 is equals to 0. Okay, and here you get the factors. So this is basically I have discussed the factorization of quadratic polynomial. Then so class 9, this is basically all for today's class. Actually I have decided to discuss the cubic polynomial, factorization of cubic polynomial as well, but the video is large enough, so I am going to discuss it on Monday. It is very simple, just a small thing we have to note down there. So talking about quadratic polynomial की factorization की बात करने के बाद, now in case you have any doubt just let me know in the Google Classroom. Okay, I will explain it. After the factor theorem and the factorization of quadratic polynomial, you can, and watching this video, making notes,
Okay, you can move to the exercise 2.4 and there are 5 questions in the exercise 2.4 and the first 4 question I think you can do yourself. ठीक है, in the question number 1 I am discussing, in case of any doubt just let me know. In the question number 1, determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. तो x plus 1 एक फैक्टर है किन पॉलिनोमियल्स का वो देखना है. इट मीन्स इस पॉलिनोमियल x प्लस 1 पॉलिनोमियल की जीरो जो है ना वो पुट करने पर पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाना चाहिए, है ना. यू हैव अंडरस्टूड दैट. मीन्स यू कैन अगर x प्लस 1 मुझे फैक्टर देखना है, ठीक है, इट मीन्स x प्लस 1 की जीरो, इस फैक्टर की जीरो, इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या है, x इज टू -1. ये है ना इसकी जीरो. इट मीन्स p -1 फाइंड करूँगी मैं क्वेश्चन नंबर 1 में. हर एक पॉलिनोमियल के लिए, हर एक पॉलिनोमियल के मैं p -1 फाइंड करूँगी जिनमें वो जीरो हो जाएगा, वहाँ पर x प्लस 1 आपका फैक्टर प्रूव हो जाएगा. दिस इज बेसिकली द फैक्टर थ्योरम दैट वी हैव अंडरस्टूड सो फार. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आई हैव टोल्ड यू, आई थिंक यू ऑल हैव कंप्लीटेड, है ना. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन द फॉलोइंग केसेस. तो उसने बोला हुआ है कि x -1, उसने बोला है कि x -1 इज अ फैक्टर, x -1 इज अ फैक्टर. तो अगर मैं इसको x -a से कंपेयर करूं देन व्हाट यू विल गेट कि pa इज इक्वल्स टू 0, है ना, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम. ठीक है, pa इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स p1 इज इक्वल्स टू 0 हर एक पॉलिनोमियल के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप px जो आपको गिवन है उसके लिए आप p1 फाइंड करेंगे, p1 इज इक्वल्स टू p1 फाइंड करेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे हर जगह पर, इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एंड फ्रॉम देयर यू विल फाइंड द k. इक्वेशन बन जाएगी और आपका k वेरिएबल रहेगा उसमें, देन यू विल फाइंड द वैल्यू फॉर k. ठीक है, सो दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 इज फैक्टराइज एंड आपको 4 पार्ट्स गिवन है, ठीक है ना. तो फैक्टराइज में मैं आपको बता दूं क्लास, in case if in your exam it is asked that factorize the given polynomial by using factor theorem, अगर ये स्पेसिफाई कर दिया गया तो आपको फैक्टर थ्योरम यूज करनी कंपलसरी है, ठीक है. लेकिन अगर खाली लिखा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम जस्ट फैक्टराइज, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसमें फैक्टर थ्योरम यूज करें या स्प्लिटिंग द मेथड यूज करें, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था आपके. we have seen in this example using the splitting middle term is more convenient. ठीक है ना, splitting middle term ज़्यादा convenient था, easy था and fast था. तो हमें यहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है. अगर स्पेसिफाई किया गया है तो आप फैक्टर थ्योरम ही यूज़ करेंगे. और इन क्वेश्चन में जो द क्वेश्चन नंबर 4 यू विल ट्राई फॉर बोथ फैक्टर थ्योरम एंड स्प्लिटिंग द मेथड. आप दोनों के लिए ही ट्राई करें क्योंकि मैंने आपको दोनों समझा दी हैं क्लियरली, ठीक है. सो द 4 क्वेश्चंस 1 2 3 4 शुड बी completed of 2.4 exercise. ठीक है, on Monday we will discuss the factorization of cubic polynomial and the question number 5 and we'll start with algebraic identities also. Okay, thank you class for watching the videos and just watch the video very carefully and enjoy learning. Be happy, be safe at home. Thank you.